The great day, ये बहुत ही अच्छा दिन है and this is the great opportunity that God has given me to serve. और ये the बहुत ही Lord. अच्छा अवसर मिला है मुझे यहाँ आपके सामने प्रचार करने का। I'm not going to take much time. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, Listen, थोड़ा टाइम लूँगा। this is the day that the Lord has made. और ये दिन है जो यहोवा ने बनाया है ना? ऐसा This is the day that the Lord has made. यही दिन है जो यहोवा ने बनाया है And we should rejoice in it. और हमको आनंद होना चाहिए। Just turn to your neighbor and smile. आपकी बाजू वाले को बोल के बाजू वाले को देख के स्माइल कीजिए, Smile. हंसिए, मुस्कुराइए And once again, you can wish them a Merry Christmas. और वापिस उनको मेरी क्रिसमस बोल सकते हैं। Just make them say Merry Christmas. बाजू वाले को बोलिए मेरी क्रिसमस। Hallelujah. हालेलुया। Since this is the day for the Lord's birth, तो जैसे ये दिन है जो यीशु मसीह जन्मा है and all over the word is preached about His birth, और इस बारे में पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है that Christ is born. कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। But do you know who was Christ Jesus? और आपको पता है कि यीशु मसीह कौन था? Since we all believe that Jesus was the Messiah, हम सब ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मसीहा था। Messiah means who saves us. मसीहा वो होता है जो हमें बचाता है। Messiah means God who saves us. मसीहा वो है जो हमें बचाता है। You have heard about so many Messiahs in this world. आपने ये दुनिया में बहुत सारे मसीहाओं के बारे में सुना होगा। Messiah means those who save you. मसीहा वो होते हैं जो आपको बचाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Christ Jesus is our Messiah. और यीशु मसीह हमारा मसीहा है। And that's why we call him Messiah. इसलिए हम उसे मसीहा कहते हैं। God who saves us. ये परमेश्वर जो हमें बचाता है। And that's the reason we all are sitting here in His presence that God has saved you. और इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम यहाँ से बैठे हुए हैं। When I was talking to Pastor was sharing a testimony. जब मैं पासवान से बात कर रहा था, उन्होंने अपनी गवाही मुझे बताई। The girl was dancing here, जो एक लड़की यहाँ पे डांस कर रही थी and Pastor shared his first testimony on how God has worked in her life. और पासवान ने वो लड़की के गवाही के बारे में बताई कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। And this is the testimony that God has done something for your life. तो ये एक गवाही है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया And है। that's the reason we call Jesus is our Messiah. इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा मसीहा है। But do you know how Jesus came in this world? और आपको पता है कैसे यीशु मसीह दुनिया में आए? Christmas is not celebrating with wine and cakes. क्रिसमस सिर्फ वाइन, दारू या फिर केक खा के मनाया नहीं जाता। Christmas is not only dancing and celebrating His birth. क्रिसमस सिर्फ यही नहीं कि नाच गाना और सिर्फ हम ऐसे। There are many people in this world they celebrate Christmas in their own styles. ये दुनिया में बहुत अलग अलग लोग हैं जो क्रिसमस को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने तरीके से The celebrate करते हैं। modern world is going in a different way. जो नया जमाना है वो अलग ही राह पे चल रहा है। But Christ was born in this earth, on this earth, in different manner. पर यीशु मसीह इस दुनिया में जब पैदा हुआ तो बहुत अलग था। But when we celebrate, we are celebrating differently. पर जब हम जो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वो बहुत अलग है। This was joy when I was sitting here and I was listening. You all were rejoicing. That was great joy among us. जब मैं यहाँ बैठा था मैं आनंद को महसूस कर रहा था। आप सबको देख के मैं बहुत खुश था। But there are people who are celebrating Christmas in different ways. और कुछ लोग हैं जो क्रिसमस को बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करते They हैं। would have a champagne bottle and they वो ऐसे बॉटल होता है दारू का, शैंपेन, उसको ऐसे उड़ा के। But we are privileged that we are sitting in His presence and we are worshiping God and celebrating His birth. पर बस हमें खुश रहना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ बैठे हैं। This is the real Christmas. ये असली क्रिसमस है। Christmas means Christ born in your heart. क्रिसमस ये है कि यीशु मसीह आपके दिल में पैदा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Can you shout hallelujah? हालेलुया चला सकते So I हैं। just want to tell the story how Christ came to this world. मैं आपको कहानी बताना चाहूँ कैसे यीशु मसीह दुनिया As the में। Bible says in John chapter 1 verse 1. जैसे बाइबल में कहता है यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स में, In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ वचन था।
So God became flesh. ये परमेश्वर आदमी बना। Okay. 1:14 John. यूहन्ना 1:14 It says, the Word became flesh. जो वचन है वो आदमी बना। So God became man. So God became man. परमेश्वर आदमी बना। So you would ask me a question, why it was necessary to become God to be a man? आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं क्यों जरूरी था कि परमेश्वर इंसान बने? Because Bible says no one can see God. क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। It is written in the Bible when Moses asked God, God show me your glory. God said, I cannot show my face to you. If you will see me, you will surely die. जब वचन में मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं आपको देख सकता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, अगर तू देख लिया तो तू मर जाएगा। Can we see sun without its spectacles? क्या हम बिना चश्मे पहने हुए सूरज को देख सकते हैं? Is it possible? क्या वो हो सकता है? It's not possible. नहीं हो सकता है। But you can imagine you are not able to see sun with your naked eyes. और आप ये सोच सकते हैं कि आप अपनी सिर्फ आंखों से सूरज को नहीं देख सकते, Then how about the Creator? तो ये दुनिया के रचनाकार को कैसे देख सकते हैं? There are millions and billions and billions of stars in the sky. अरबों खरबों सितारे हैं पूरी दुनिया में, And sun is one of them. और सूरज बस एक है। Billions of billions and billions. अरबों खरबों सितारे हैं। You can imagine how beautiful, how dazzling is our Creator. आप बस सोच सकते हैं कितना खूबसूरत है हमारा परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। So no one can see God. कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। I want some volunteers. I want you all. ये 2-3 लोग चाहिए यहाँ पे इस चीज में। A chair and a volunteer. एक चेयर, एक कुर्सी और 2 लोग। So I would like to share a story about, this is God's story, how Jesus became Jesus on the earth. तो मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कैसे यीशु मसीह आया है। It's God. ये परमेश्वर है। God sits on his throne. परमेश्वर अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है। Hallelujah. Hallelujah. And no one can see God. अब कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। You cannot see his son with your naked eyes. Even God is more. आप सिर्फ अपनी आंखों से सूरज को नहीं देख सकते, सूरज को बनाने वाले को कैसे देख सकते हो? It's not possible to see God. वो नहीं हो सकता। That's the reason. और इसीलिए When people were dying, जब लोग मर रहे थे, you have heard of the story of Noah. जब आप नूह की कहानी को पता होगा आप सबको। Noah and his time, you must have heard about Noah's time. नूह के समय की कहानी आप सबको पता होगी। Bible says many people are following God. Ultimately, all of them. वचन यही कहता है कि नूह के टाइम पे ऑलमोस्ट सब कोई भी परमेश्वर की तरफ आग नहीं उठा। And Bible says God destroyed the whole world. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने पूरी जगत को खत्म कर दिया। Only 8 people survived. सिर्फ 8 लोग बचे थे, Noah and his family. नूह और उसके परिवार। But next time God planned, I cannot destroy my people. और उसके बाद परमेश्वर ने ये सोचा कि नहीं, मैं ये दुनिया को तबाह नहीं do करूँगा, something. मुझे कुछ करना पड़ेगा। And God had planned. This is actually an eternal plan. ये एक हमेशा का प्लान है। God, where we cannot see God. परमेश्वर जिसको हम नहीं देख सकते, And God is glorious. और उनकी पवित्रता उनके आजू बाजू है। You cannot see God. God sits in His glory. आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, परमेश्वर अपनी महिमा पे बैठता है। The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word was God. और वचन यही कहता है कि आदि में God, परमेश्वर Jesus Christ, यीशु मसीह His Son. उनका बेटा। And I would like to share a couple more verses. It says in Colossians 1 verse 15. तो और एक
पढ़ सकता है तो प्लीज पढ़िए। It says the Son, Jesus Christ, is the image of God. वचन वो ये कहता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का ये इमेज प्रतिरूप है। You cannot see God. आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, You cannot see God. आप नहीं देख सकते। But Bible says here, Jesus is the visible image of invisible God. तो वचन ये कहता है कि दृश्य परमेश्वर का दृश्य स्वरूप। Hallelujah. हालेलुया, God is here. परमेश्वर यहाँ है, We cannot see God. हम नहीं देख सकते। बाजू वाल्याला म्हणा देवाला बघता येत नाही आम्हाला. नाही बघू शकत देवाला. But we can see Jesus. पर हम यीशु मसीह को देख सकते हैं Because Paul says in Colossians chapter 1 verse 15, कि पौलुस Jesus, the Son of God, is the visible image of invisible God. यीशु मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का दिखाई देने वाला स्वरूप है। Hallelujah. Hallelujah. And that's the reason. और इसीलिए That's the reason. There was a plan. This was guitar God had a plan परमेश्वर ने एक प्लान किया to send Messiah on the earth. कि एक मसीहा को भेजे दुनिया पर, And there was a girl और वहाँ पे एक औरत थी called Mary. और उसका नाम मरियम था। He is God ये परमेश्वर है in His glory. की महिमा में। Jesus is with him. यीशु मसीह उनके साथ है। We cannot see God. हम परमेश्वर को नहीं देख But सकते, Jesus is the glory of God. और यीशु मसीह जो है उनकी महिमा है। Colossians says Jesus is the glory of God. कोलोसियंस ये कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है। What does it mean by glory? इसका क्या मतलब हो सकता है You know महिमा what का? is glory? आपको महिमा का मतलब पता है? You can see His light. आपको रोशनी को देख सकते हैं, You can see His light. आप देख सकते हो रोशनी को, There is light inside. उसके अंदर रोशनी है, Bulb आया But you cannot see that bulb. और आप वो अंदर की जो बल्ब है वो नहीं देख सकते, You cannot see, right? वो नहीं देख You सकते can आप। see the light of it. बस आप उसकी रोशनी देख सकते हो। Jesus was the same. यीशु मसीह भी वैसा ही You था। cannot see God, only see the brightness. आप परमेश्वर को नहीं देख सकते पर उसकी उजाले को देख And सकते that हैं। is how Jesus was the glory of Father. इसी तरह यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा थी, And this glory और यही महिमा is called the Holy Spirit. इसे ही कहते हो पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। And Bible says, और वचन ये कहता है, and an angel appeared. एक स्वर्गदूत आया मरियम के पास, Angel appeared to Mary. स्वर्गदूत आया मरियम के पास। And you know the story, right? आपको कहानी पता है, Through Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा she became pregnant. वो मरियम गर्भवती बनी। A virgin girl became pregnant with the Holy Spirit. With the Holy Spirit. एक कुंवारी लड़की गर्भवती बनी। God's glory परमेश्वर की महिमा came in a virgin's womb. परमेश्वर की महिमा एक कुंवारी गर्भवती में आ गई, उसके घर में आ गई। Glory of God. परमेश्वर की महिमा। Hallelujah. हालेलुया। Now you can imagine what is Christmas. आप सोच सकते हो अभी क्रिसमस क्या है। No one see God. आप कोई परमेश्वर को नहीं देख सकते, Okay, so just to show God who God is बस दिखाने के लिए कि परमेश्वर कौन है, through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Holy Spirit came on Mary. पवित्र आत्मा मरियम के पास आई, She became pregnant. वो गर्भवती बनी। Jesus came in her womb. यीशु मसीह उनके पेट में आया, And that's how Jesus came in this world. और इस तरह यीशु मसीह दुनिया में आ गए। Okay. This is Jesus, the Holy यीशु Spirit. मसीह है। Now everyone was watching Jesus. Everyone was watching God on the earth. सब लोग यीशु मसीह को इस धरती पर देख रहे थे। Prophet says. Prophet says. आइज़ाया की किताब ये कहती है, A virgin will have a son. एक कुंवारी लड़की, एक लड़का, Name that boy Emmanuel, the God with us. और उसका नाम होगा इम्मानुएल, और वो हमारे साथ रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। God
us, that is called Christmas. एक परमेश्वर जो एक इंसान बन के आया वो हमारे साथ रहा है, इसे कहते हैं क्रिसमस। बाजूवाला म्हणा देव तुमच्या बरोबर असणं म्हणजे ख्रिसमस आहे. Hallelujah. If God is there with you in your life, it means you can celebrate Christmas every day. अगर आपके दिल में परमेश्वर है तो आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बाजूला म्हणा देव तुझ्या बाजूला बसलाय. माझ्या आतमध्ये आहे ना देव. आहे की नाही? आहे की नाही? बोला की नाही? So God became man and came on the earth and showed his glory. तो परमेश्वर इंसान बन के एक मरियम में आया और उसकी महिमा को दिखाया। And Jesus was a man, God on the earth. और यीशु मसीह एक इंसान बन के आया। The glory of God was on him. और परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर थी। This was the glory of God. ये उसकी महिमा है। This was the glory of God. ये उसकी महिमा है। मुझे बॉटल मिलेगा एक खाली. This was the glory of God. ये उसकी महिमा है। And Jesus came on the earth and he performed so many miracles. और जब यीशु मसीह धरती पर आया उसने बहुत सारे चमत्कार किए। So many miracles he performed. बहुत सारे चमत्कार He showed how God works. उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने ये दिखाया कि परमेश्वर कैसे काम करता है। How God works खाली करते. How God works. कैसे परमेश्वर काम करता है। He healed many. उसने बहुत लोगों को चंगाई He दी। raised many. उसने बहुत लोगों को ऊपर उठाया। He gave eyes to blind. अंधों को आंखें दी। Dumb started speaking. जो बोल नहीं सकते थे उनको शब्द मिले। Lame started walking and running. जो जिनके पैर नहीं थे वो चलने लगे। But there were few people who were against Jesus. वहाँ कुछ लोग थे जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते। Ultimately, Satan was after this. फिर जो शैतान है वो यीशु मसीह पीछे आया। Because I'm making my sermon short. मेरा जो प्रचार है मैं बहुत कम कर रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे And this is how Jesus was hung on the cross. और इसी तरह यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। The glory of God, परमेश्वर की महिमा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, okay, Jesus यीशु is मसीह on the earth. धरती पर आए। Jesus is on the earth, यीशु मसीह धरती पर आए hung on the cross. और ये क्रूस पर टंगे। It's bottle. और ये जो बॉटल है It's like this, right? ये ऐसी है, A live body. ये नॉर्मल है बॉटल। But Jesus was crushed on cross of Calvary. पर यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, कुचाला गया। But God became man and died on the cross. परमेश्वर इंसान बन के क्रूस पे आया And he was crushed. और उनको बहुत ही कुचला गया। He looked like this. यीशु मसीह ऐसा हो गया, He died on the cross. वो मर गए क्रूस पर। And Satan said, I'm happy now. और शैतान ने ऐसी हंसकर कहा कि मैं खुश हूँ, God has died. क्योंकि परमेश्वर मर चुका है। The Son of God has died. I have killed the Son of God. परमेश्वर का बेटा मर चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ। After 3 days, पर 3 दिन के बाद something happened. कुछ हुआ। A crossed body. जो एक कुचली हुई शरीर थी, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ने उस शरीर में जान फूंक दी It's become alive. और वो जिंदा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा। And Bible says, Jesus said, I'm going back to my Father in glory. और ये वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ, I'm not going to leave you alone. पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। I will give you मैं आप सबको पवित्र आत्मा देता हूँ। May I walk on the earth. But may I walk on the earth. जैसे मैं पृथ्वी पर जैसे मैं पृथ्वी पर था, The way I walked on the earth. जैसे मैं इस दुनिया में काम किया, Just as I walked, as I lived on the earth. जैसे मैं इस धरती पर रहा हूँ, As I performed on the earth. जैसे मैंने ये धरती पे काम किया, You will be able to see. आप सब भी वैसा करेंगे You will be able to see. पवित्र आत्मा के द्वारा।
आपके हृदय में होता है this glory of God, और परमेश्वर की महिमा के द्वारा we are giving many birth हम बहुत सारे जन्म लेते हैं through the Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा There are many people are getting born again in Christ Jesus. बहुत सारे लोग वापिस पैदा होते हैं The same Spirit was